Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Buzz. We are continuing with the class 8 topic, which is understanding quadrilateral. I have posted introductory video. Do watch my previous video for the introduction of the same chapter. So in continuation, we are just taking the how many diagonals are possible in a polygon. Okay, so I have taken few examples. You can watch it in the on the screen. We have various polygons, like एक हमारा आपका quadrilateral हो गया, एक हमारा pentagon हो गया, एक हमारा hexagon हो गया. तो manually we have joined them to find out how many diagonals are possible. So if you join the diagonals in case of the quadrilateral, we are getting 2 diagonals. We have 2 diagonals, and in case of pentagon we are getting 5 diagonals, and in case of hexagon we are getting 9 diagonals. Okay. And you know, this is simple. If you have a polygon of less number of sides, it's easy to find the number of diagonals, but by joining the non-consecutive vertices. But the problem arises when the diagonals are, the number of sides are more. Say it is 10, 12, 24, 36. How will you find the number of diagonals? Because making the polygon of 24 sides is not an easy job. So we have a formula. The formula says n into n minus 3 upon 2. So we'll verify. If you take n equal to 4, n equal to 4 means if the number of sides are 4, how many diagonals are there? So there are, n is 4. So 4 into 4 minus 3 upon 2. So this is 2 diagonal. Okay. So this is 4 by 2. We have 2 diagonals. Moving to next, if we take n is equal to 5, that is if this is a pentagon, how many number of diagonals are possible in pentagon? So wherever your n is coming, number of diagonals are, we'll just replace 5 into, we'll just put n for 5. And this is 5 into 2 by 2. So number of diagonals are 5. So I would just request you to try for hexagon all by yourself. आप सबसे पहले hexagon बनाएंगे, diagonals को manually join करिए, उसको find out करिए how many diagonals are possible, and then verify with the formula. This formula will really help you in finding the number of diagonals with the maximum or the larger number of sides. If you have a polygon with larger number of sides, then you can find the number of diagonals. Okay. So now the next point is what is the angle sum of a polygon? Okay, like interior angle sum of a polygon. So how will we find out the interior angle sum of a polygon? Okay, so we'll continue with the interior angle sum of a polygon. Before that, I just want to give you the how does this formula comes. You can see we have various kinds of polygons, starting from the quadrilateral, we have pentagon, we have hexagon. What you have to do is just take one vertex and then join it to the other vertex and form a diagonal. Okay, we don't need to crisscross. We are not drawing AC. Cross नहीं करना आपने, बस आपने एक पॉइंट लेना है और उससे डायगोनल्स बनाने हैं. ठीक है. पर्पस क्या है कि हमने पूरे अपने पॉलीगन को ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है. ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है. If you see, this is first triangle, this is second triangle. Same way, this is first, second, this is third. Here if you come, this is first, second, third, and this is fourth. So here if you see, what is the angle sum of a triangle? Angle sum of a triangle is 180. How many triangles we have got? We have got 2 triangles. So what should be the angle sum of this quadrilateral? 360. Moving to pentagon. How many triangles are there? There are 3 triangles. And what is the angle sum of a one triangle? 180. So 3 triangles का angle sum कितना हुआ? 540. So this is 180 into 3, 540. इसका मतलब है 540 हमारा क्या हुआ? Total angle sum हुआ पेंटागन का. अगर हम हेक्सागन में आए, हेक्सागन में हमारे 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं. हर ट्रायंगल का जो मेजर है वो 180 है और टोटल एंगल सम हमारा 720 हो गया. Okay, so this is possible when you have the least number of a polygon or the polygon with lower number of sides, है ना. 6 है, 7 तक भी कर सकते हैं. लेकिन अगर जहाँ पर हमारी polygon की size बढ़ जाती हैं, so this is not practically possible. So we have a formula to find out the interior angle sum of a polygon, and the formula is n minus 2 into 180. Why I have written the example? Because what happens, the children, they don't understand. उनको समझ नहीं आता कि formula कैसे आ रहा है.
So यहाँ पर you can substitute. If I am taking n is equal to 4, I'll just verify. If you put n equal to 4, 4 minus 2 is into 180. So you get 2 into 180, that is 360. So we are getting the same value which we have derived here. Same is you can try for pentagon, you can try for hexagon. Okay, now I'll take question. Okay, so we'll start with question number 4 of exercise 8.1, where we have been given the various number of sides and we have to find the interior angle sum of a polygon. Okay, so now we'll continue with the exercise 3.1, question number 4. We have to find the angle sum of a convex polygon when the number of sides have been given. So number of sides in this case is 7. So here what is the formula for finding the interior angle sum of a quadrilateral? So the formula is interior angle sum is equal to n minus 2 into 180. So whenever we have been given n, this is 7. So 7 minus 2 into 180. Okay, this is degree. So 5 into 180, that is 900 degree. So it means like if the number of sides in a convex polygon is 7, if it is a heptagon, then the interior angle sum is going to be 900. Okay, so this part is clear. Now for the second part, if n is 8, what will be the total interior angle sum? Okay, interior angle sum of a polygon with sides 8. This is 8 minus 2 into 180. We'll just replace n by, this is the formula, this is the formula. So wherever n is coming, we'll replace it by the number of sides given. So 8 minus 2 is 6 into 180. So this is 1080 degree. This is our interior angle sum. Okay, now moving to the next part. Here we have been given, now the number of sides are 10. So how will we find? So the interior angle sum in this case is interior angle sum or angle sum of a polygon with 10 sides. ओके, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ओनली थिंग कि हम n को रिप्लेस कर देंगे 10 से. तो 10 माइनस 2 इंटू 180, सो दिस बिकम्स 8 इंटू 180, दैट इज 1440 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पर ओके, ये थोड़ा सा हम इसको स्मॉल बना लेते हैं. ठीक है, सो इस केस में अगर हम लास्ट पार्ट देखें तो उसमें हमें n की कोई वैल्यू ही नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वही रहेगा जो हमारा इंटीरियर एंगल सम होता है. तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है ना. तो इसमें इंटीरियर एंगल सम में आपको n की कोई भी वैल्यू दी हुई है तो हमें एंगल सम हम निकाल सकते हैं. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन. सो आवर डेफिनेशन विल रिमेन द सेम. अ पॉलीगन विद in which all sides are equal in length and all angles are equal in measure. Is called a रेगुलर पॉलीगन. ठीक है, वो हमारा रेगुलर पॉलीगन हो जाता है जिसमें हमारी सारी एंगल्स इक्वल हैं और सारी साइड्स इक्वल हैं, है ना. अब हमें यहाँ दिया हुआ है कि अगर ये हमारा 3 साइडेड पॉलीगन है ना, और अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो व्हाट विल बी इट्स नेम? इट नेम विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल. Because if you see equilateral triangle, it has all 3 sides equal and measure of each angle is 60 degree. Correct?
ओके, सेकेंड पार्ट है 4 साइड्स हैं, तो क्या होगा ये हमारा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और अगर 6 साइड्स हैं तो जैसे 3 साइड्स और 4 साइड्स के लिए एक पर्टिकुलर नेम है ना, 6 साइड्स के लिए हमारा हो जाएगा ये रेगुलर हेक्सागन। और ये इसको आई हैव गिवन इन माय इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑल्सो कि हम इनके नाम क्या बोलते हैं। अगर सपोज हमारा 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो उसको क्या बोलेंगे, 10 साइडेड डेकागन, और नॉट 10 साइडेड डेकागन, दैट विल से रेगुलर डेकागन। ओके, तो उसके नाम के आगे रेगुलर लग जाता है अगर हमारा वो रेगुलर पॉलीगन है। तो जैसे कि अगर रेगुलर पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स है, 8 साइड्स है पॉलीगन की, तो हमारा रेगुलर ऑक्टागन हो जाएगा। ठीक है, ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, वी हैव टू फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा पॉलीगन कौन सी साइड का है ना, कितनी साइड्स हैं इस पॉलीगन में। तो यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5, ओके, 5 साइडेड पॉलीगन है। तो यहाँ पे पहले हम इसका इंटीरियर एंगल सम ले लेंगे। इंटीरियर एंगल सम ऑफ पॉलीगन विथ साइड्स 5 साइड्स हैं इसकी। तो उसका फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। n हमारा 5 है, सो 5 - 2 इंटू 180, दैट इज 3 इंटू 180, ये हमारा क्या हो गया 540। अब ये एंगल तो हमारे निकल गए हैं, इसके जो इंटीरियर एंगल सम है वो हमारा आ गया है ना। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है साइड से, तो इसको हमने रिमूव कर दिया। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इसकी एक्स की वैल्यू, तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स की भी वैल्यू निकालते हैं। ये जो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं ना, इनकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये अगर सपोज इसको आप 1 लिख लेते हैं, इसको आप 2 लिख लेते हैं, तो एंगल 1 + 70 डिग्री है ना। अगर हम इसको इंटीरियर एंगल लेते हैं तो एंगल 1 + 70 डिग्री, इसका सम आ रहा है 180। तो यहाँ से क्योंकि ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर हो गया, तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 - 70 110, ये 110 हो गई। तो ये इसकी वैल्यू 110 है इंटीरियर एंगल की। सिमिलरली अगर ये 60 डिग्री है तो इस एंगल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 180 - 60, दैट इज़ 120। तो आपका जो इंटीरियर एंगल ये है इसका 120 हो गया है ना। अब ये हमारा पेंटागन जो है, इसमें हमें आउट ऑफ 5 एंगल्स 3 एंगल्स पता चल गए हैं। 2 एंगल्स तो हमारे क्या हैं, सेम एंगल्स हैं, तो वी कैन ईजिली फाइंड एंगल सम इज 540। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हियर द सम ऑफ एंगल्स इन पेंटागन इज हाउ मच, कितना गिवन है 540। सो 540 में ये एंगल्स को हम रख देंगे जो जो हमें एंगल्स की वैल्यू पता है, इसका सम 540 आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 30 + 2x + 230, दिस इज 540। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गई। तो अभी जो भी कांस्टेंट टर्म आ रही है उसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो 2x = 540 - 230 - 30, इसको शिफ्ट कर दीजिए। सो 540 - 260, दिस इज इक्वल टू 2x। तो 2x = ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 280। x की वैल्यू हो जाएगी 280/2, दैट इज 140। तो जो हमारा इंटीरियर एंगल है, जो हमारे यहाँ पर 2 एंगल्स आ रहे थे, सो मेजर ऑफ ईच एंगल ये हमारा 140 और 140 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 140 हो जाएगी और दूसरे एंगल की भी वैल्यू 140 हो जाएगी। इसको हम चेक कर सकते हैं, जो हमारा इंटीरियर एंगल सम है वो हमारा कितना आना चाहिए, 540 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को जो है ना आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई विल टेक दिस इज देयर इज़ वन मोर पार्ट जिसमें हमें दिया हुआ है रेगुलर पेंटागन है ना। एक क्वेश्चन हम 6th का एक और ले, क्वेश्चन नंबर 6 में अब ये जो हमारा लास्ट पार्ट है इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू क्या 5 है। अच्छा, जो मार्किंग दी हुई है ये रेगुलर है,
है ना, रेगुलर पेंटागन है। तो रेगुलर पेंटागन का मतलब है इसकी साइड सेम है, सो साइड सेम है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर एक एंगल x दिया हुआ है तो इस तरह से हमारे जो बाकी के एंगल्स हैं वो भी x हो जाएंगे, है ना। कितने एंगल्स हो गए, 5 हो गए। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल सम लिखेंगे, इंटीरियर एंगल सम ऑफ अ पेंटागन, एंगल सम ऑफ पेंटागन। n की वैल्यू 5 है ना। तो ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो n-2 इंटू 180 और n की जगह हमने क्या रखना है, 5 रख देना है। तो यहाँ हमने 5 रख दिया, 5 - 2 इंटू 180, सो ये हमारा हो गया 3 इंटू 180 अपॉन 540। क्योंकि रेगुलर पेंटागन है तो सारे एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं, है ना। तो सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज हाउ मच, 540। और अगर हम इन सबको ऐड करें, अगर x प्लस इन्हीं का सम आ रहा है 540, तो इसको ऐड करके हम 540 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से 5x की वैल्यू 540 आ गई है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 540 अपॉन 5, दैट इज 108। सो मेजर ऑफ ईच एंगल इज गोइंग टू बी 108 डिग्री। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल जाएगा। सबसे पहले अगर हम नोटिस करें x और 90 ये हमारा लीनियर पेयर है, z और 30 ये भी लीनियर पेयर है ना। हमें इन सब की x y z की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले अगर सपोज हम इसको लेबल कर देते हैं, ABC हमारा एक ट्रायंगल है। तो ABC ट्रायंगल में दो एंगल्स की वैल्यू हमें पता है, थर्ड एंगल की वैल्यू इंटीरियर एंगल हमसे निकाल सकते हैं ना। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसका सम 180 आ रहा है। तो यहाँ पर एंगल C की वैल्यू आ जाएगी, एंगल C की वैल्यू आ गई। एंगल C इज 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 60 आ गया। अब क्या करेंगे, लीनियर पेयर से, जैसे अगर आप ये लेंगे x प्लस 90, इसकी वैल्यू 180 है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 180 माइनस 90 डिग्री आ गया। सेम वे अगर इन दोनों को लेते हैं हम, y प्लस 60 इज इक्वल टू 180, यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है और लास्ट में आपकी z की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अब क्या करना है, हमें ये एंगल सम निकालना है ना। इस एंगल सम को हम कैसे निकालेंगे, आपने सीधा क्या करना है, वैल्यूज तो हमने निकाल ही ली है, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। तो x की वैल्यू 90 डिग्री है, यहाँ पे रख दो। y की वैल्यू 120 है, इसको भी रख दो। z की वैल्यू 150 है, इसको भी रख दो। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आ रहा है, 360 डिग्री। सो दिस वे, लाइक यू इफ़ यू नोटिस, ये जो हमारा ट्रायंगल था इसके जो एक्सटीरियर एंगल सम है उसका जो एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं उसका जो सम है वो हमारा 360 आ रहा है ना। तो ये हमारा पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल। तो पार्ट 2 को हम कैसे करेंगे, तो पार्ट 2 भी हमारा बिल्कुल इसी तरह से होगा। सो पार्ट 2 को यू पीपल कैन ट्राई, बिकॉज पार्ट 1 में ट्रायंगल है, पार्ट 2 में हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एक्सरसाइज 8.1 which deals with interior angle sum of a quadrilateral. ठीक है, in my next video I will take related to exterior angle sum of a quadrilateral. Okay, so till then keep learning, keep practicing. Thank you and have a good day.